I'm Chavi Sharma. I am pursuing MCOM second year, and I have decided a topic to speak about security analysis. Initially, we will try to study about the security. Security is nothing but it is just an instrument. It is just a certificate instrument um, which we try to purchase by giving some consideration, by giving some money to them. Okay, security includes bonds, debentures, shares, preference shares. These all are the instruments which company issues to for raising fund. As we know, company need fund. So company for fulfill such requirement of fund issues some instruments, and these instruments are called securities. As well as we can also include the units which issues by the mutual fund. Mutual fund nothing but it is just an intermediary. It works as an intermediary. It pooled fund from us, from our saving, and invest such pooled fund into this company and purchasing equity shares, and we get units in consideration of such investment. So units are also included in the security. So this is the actually definition of the security, where security includes government securities, bonds, shares, debentures, preference shares, as well as units which issues by the mutual fund or collective investment scheme as well. So these all are about the securities. And the second one is analysis. Analysis means nothing but we are just trying to get the some information regarding such a security where we are intending to invest. We are just getting some information regarding such a security because we want to know कि if we invest in such security whether such investment will be good or not. क्या हमारी सारी सेविंग ख़राब तो नहीं हो जाएगी. सो वी शुड नो ना फर्स्ट. तो फॉर उसके लिए हम क्या करते हैं, सब इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं. हिस्टोरिकल भी हम परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं और हम फ्यूचर को एक्सपेक्टेड रिस्क और रिटर्न भी हम चेक कर सकते हैं जो कि प्रोबेबिलिटी बेस्ड होता है. सो इनको एनालिसिस करके क्या पाते हैं, वी आर नॉट गेटिंग द एक्चुअल इन्फॉर्मेशन बट या वी आर जस्ट एक्सपेक्टिंग कि हाउ मच रिटर्न और हाउ मच रिस्क वी हैव टू बेयर इन फ्यूचर regarding such a particular security where we are going to invest. So this is all about the security analysis. And whenever we talk about analysis, so analysis are classified into two parts. First one is technical analysis and second one is fundamental analysis. These are the two ways where by using which we can analyze easily. As let's start about analysis. First one is fundamental analysis. So fundamental analysis have consisted three parts. First one is इकोनॉमिक को करना, इकोनॉमी को एनालिसिस करना. सेकेंड वन इज़ इंडस्ट्री को एनालिसिस करना और थर्ड वन इज़ कंपनी को एनालिसिस करना. तो जब वेन एवर वी टॉक ना इनको इकोनॉमी को एनालिसिस करना, इट मीन्स वी आर जस्ट ट्राइंग कि जीडीपी क्या है, जीडीपी क्या है हमारे इकोनॉमी का, और इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल हो रहा है नहीं हो रहा है. उस पर डिपेंड करता है कि हम जो सिक्योरिटी मार्केट में जो हम इन्वेस्ट करने वाले हैं क्या वो हमारा बढ़िया रहेगा इन्वेस्टमेंट या नहीं रहेगा, उससे हमें पता चल जाता है. सेकेंड वन इज़ इंडस्ट्री को एनालिसिस करना. जो भी इंडस्ट्री अवेलेबल है उसको हम एनालिसिस करते हैं, उसके स्टेजेस को देखते हैं कि वो कौन से स्टेज पे है. लाइक पहला स्टेज होता है हमारा इंट्रोडक्शन करना, फिर उसके बाद ग्रोथ होता है, फिर मैच्योरिटी होता है, फिर उसके बाद हमारा लास्ट होता है स्टैग्नेशन. तो कौन से स्टेज पे हमारी इंडस्ट्री चल रही है उसको एनालिसिस करना, ये भी हमें इन्फॉर्मेशन बताता है. और थर्ड वन एंड लास्ट वन होता है जो कि फंडामेंटल एनालिसिस का लास्ट वन टॉपिक होता है, कौन सा, कंपनी को एनालिसिस करना. एक पार्टिकुलर कंपनी को एनालिसिस हम कैसे कर सकते हैं, वी कैन एनालाइज अ पार्टिकुलर कंपनी थ्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फाइनेंशियल स्टेटमेंट नथिंग बट इट इज़ एक पोजिशंस को बताता है, कंपनी की कैसी पोजीशन है, कंपनी का प्रॉफिट कैसा है, लिक्विडिटी कैसी है कंपनी की, प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है कंपनी की, और रेशियोज़, थ्रू रेशियोज़ वी कैन ऑल्सो एनालाइज कि कंपनी की कौन सी पोजीशन है, कैश फ्लो कैसा है कंपनी के अंदर. आफ्टर एनालाइजिंग दिस और आफ्टर गेटिंग सम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सच फ्रॉम सच फाइनेंशियल स्टेटमेंट वी कैन ऑल्सो एनालाइज. सो दिस इज़ द फंडामेंटल एनालिसिस. बट फंडामेंटल एनालिसिस अकेला काम नहीं कर सकता. सो वी हैव टू एनालाइज थ्रू द टेक्निकल, वी हैव टू यूज़ द टेक्निकल एनालिसिस. अब टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, एक्चुअली नथिंग बट ये क्या होता है कि ट्रेंड होता है, देयर इज़ अ ट्रेंड. फर्स्ट मैं डिफाइन कर देती हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस के अंदर तीन पार्ट्स होते हैं.
एक्चुअली टेक्निकल एनालिसिस के अंदर एट अर्लीस्ट पॉइंट पे एक डो जोन्स थ्योरी आई थी जो कि इंट्रोड्यूस करी गई थी डो जोन्स के थ्रू। तो उन्होंने बोला था कि दे आर 3 पार्ट्स, प्राइमरी ट्रेंड, सेकेंडरी ट्रेंड एंड माइनर ट्रेंड। तो ये जो प्राइमरी ट्रेंड होता है, प्राइमरी ट्रेंड जो होता है वो 1 ईयर टू 3 ईयर्स के लिए होता है, और जो सेकेंडरी होता है वो होता है हमारा 3 वीक से लेके 3 मंथ तक होता है, और विद इन 3 वीक के लिए माइनर ट्रेंड होता है। माइनर ट्रेंड जो होता है वो नैरो ट्रेंड होता है जो कि डे टू डे इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है। तो पहले हम बात कर लेते हैं प्राइमरी ट्रेंड की। प्राइमरी ट्रेंड क्या कहता है, वो हमारे डायरेक्ट रिलेशन रखता है प्राइस की मूवमेंट से। आई मीन वी कैन से कि बुलिश फेस या फिर बियरिश फेस। क्या होता है ना, जो भी हमारी सिक्योरिटीज़ है उनके प्राइस में क्या क्या मूवमेंट हुआ, हम उसके थ्रू भी एनालिसिस करते हैं कि एक्सपेक्टेड रिस्क और एक्सपेक्टेड रिटर्न हमारा कितना हो सकता है इस सिक्योरिटी के मतलब इस सिक्योरिटी के रिस्पेक्ट में। उसके लिए हम क्या करते हैं, उन्हें उसके लिए हमें स्टडी करना होता है प्राइमरी ट्रेंड को। तो प्राइमरी ट्रेंड में क्या होता है ना कि जो प्राइस का मूवमेंट हो रहा है, सिक्योरिटी के प्राइस का जो मूवमेंट हो रहा है उसको एनालिसिस करते हैं। अगर प्राइमरी ट्रेंड हमारा अप जाता है तो उसका मतलब है कि ये हमारा बुलिश फेस को शो करता है, और अगर वो डाउन जा रहा है तो वो हमें क्या शो करता है, वो हमारा बियरिश फेस होता है। बियरिश फेस मतलब प्राइस का मूव होना, मतलब डाउन होना नीचे की तरफ, और बुलिश का मतलब होता है कि वो ऊपर की तरफ हो रहा है, तो प्राइस हमारा बढ़ रहा है सिक्योरिटी का। सेम एज सेकेंडरी जो होता है वो एक करेक्शन होता है प्राइमरी का, एंड एज वेल एज जो माइनर होता है वो हमारे नैरो होता है और डे टू डे इन्फॉर्मेशन वाला सिस्टम होता है जो कि हमारे प्राइस की मूवमेंट को हमें शो करता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द एनालिसिस। So I think that would be enough about the security analysis. Thank you.